हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम एंड आई एम गुरमीत कौर। आज हम समरी और पोएटिक डिवाइसेस देखेंगे इन द पोम द ब्रुक क्लास 9. सो लेट्स बिगिन. So the Brook is written by Lord Alfred Tennyson. This is Lord Alfred Tennyson. Now let's begin with the summary. Summary. The Brook is the poem written by Lord Alfred Tennyson. ठीक है, तो सबसे पहले ये बताना बहुत ही जरूरी होता है. The first line has to be who has written it. The poem describes the origin of brook, which is a stream or a small river. The brook is personified in this poem. कि पूरी की पूरी जो poem है ये personified है. It narrates its own story and describes its journey of life. वो अपनी बारे में बता रही है ना, वो stream, इसलिए वो personified है. The words like chatter, babble, sharps, and trebles are used to describe its energetic movement, whereas the words like steal, slide, gloom, glide, murmur, and loiter are used to express the slower movement towards the end of its journey. It passes through different landforms like forests, fields, grassy lawns, flower fields, gardens, etc. It does not follow a straight path but meanders around rocks and boulders without letting anything to stop its path. तो इस तरह से हमने पूरा बताया है कि वो कैसे कैसे उसकी शुरुआत हुई, वो कैसे एनर्जेटिक थी, बाद में वो थोड़ी स्लो डाउन हुई और वो कैसे कैसे लैंडफॉर्म्स से गुजरी. यही सबसे ये पोएम बनाई गई है. Similarly, man also face many challenges in life. जैसे ब्रूक ने इतना लंबा सफर तय किया, वैसे ही हम लोग मैन भी एक ऐसे ही challenges के थ्रू निकलते हैं. Through this poem, the poet points out to the eternal nature of the brook that outlives men. Many men are born and die, but the brook never ceases to exist. It continues to flow and lives eternally. It lives eternally. So this was a summary of the poem. In 9th standard, this is very common to write summaries. You should know how to write it and you must learn this properly. अब हमने ये तो देख लिया कि ब्रूक की समरी क्या थी, लेकिन आपको समरी खुद भी लिखनी पड़ सकती है. इन दैट केस, हाउ टू राइट अ समरी? जस्ट go through all these important tips which are here. First of all, find the main idea. Useful summary distills the source material down to its most important point to inform the reader. And keep it brief. ये बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए. Summary is not a rewrite. उसको पूरा दोबारा नहीं लिख देना है. It's a short summarization of the original piece. और write without judgment. इसमें आपको अपनी कोई judgment नहीं देनी होती. You have to write what poet has written, but in a short form you have to tell and make sure it flows. उसका ऐसे नहीं है कि वो आगे पीछे हो रही है. एक proper way में उसे लिखना बहुत जरूरी है. अब इसके साथ आ जाते हैं आपके पोएटिक डिवाइसेस. पोएटिक डिवाइसेस क्या क्या होते हैं इस पोएम में? हर पोएम में होते हैं, लेकिन इस पोएम में जो जो जनरली यूज हुए हैं वो सबसे पहला तो है पर्सोनिफिकेशन. Personification is a figure of speech in which an idea or thing is given human attributes or feelings or is spoken as if it is were human. Brooke is personified as a person in this poem. तो यही हमने स्टार्टिंग से एंड तक देखा कि पर्सोनिफिकेशन है इस पोएम के अंदर. रेपिटेशन है. इट इज द रेपिटेशन ऑफ द वर्ड और अ फ्रेज इन द पोएम फॉर पोएटिक इफेक्ट. जैसे टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर, ये बार बार स्टैंजास में अलग अलग में यूज हुआ है. फॉर मैन में कम एंड मैन में गो, बट आई गो ऑन फॉर एवर एंड हियर एंड देयर. ये सारे रेपिटेशंस यूज हुए हैं इस पोएम के अंदर. एलिट्रेशन क्या होते हैं? इट इज द अकरेंस ऑफ द सेम साउंड एट द बिगिनिंग of closely connected words. जैसे कि sudden sally आया था. Hills I hurry 20 thops, है ना? Thops means villages. Half a hundred, that makes 50. Men may field and fallow, fairy foreland with willowy. देखो the उनके जो फर्स्ट जो अल्फाबेट्स है, दे आर सेम. फोमी फ्लेक, गोल्डन ग्रेवल, स्किमिंग स्वेलोज, सैंडी शैलोज, ये सारा एलिट्रेशन है यहाँ पर. Imagery. Imagery refers to the elements of the poem that engage a reader's sense. The poet uses imagery throughout the poem to describe the places that the brook flows through and the things it sees. उसके बाद है enjambment. It is the continuation of a sentence to multiple lines. Many of the sentences in this poem span multiple lines and are therefore of this
नेचर। उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इस पोएम के अंदर, ओनोमैटोपोइया। इट इज द यूज ऑफ साउंड्स फॉर लिटरेरी इफेक्ट्स, जैसे कि आई चैटर ओवर स्टोनी वेज इन लिटिल शार्प्स एंड ट्रेबल्स, आई बबल इनटू एडिंग bays, I babble on the pebbles, I chatter chatter as I flow, I murmur under moon and stars। तो ये सारे जो है एग्जाम्पल्स है ओनोमैटोपोइया के। तो अब हम देखते हैं आगे पोएम में ये कहाँ कहाँ यूज हुए हैं। तो फर्स्ट ये मैं स्टेंजा वाइज यहाँ पर आपको easily you can understand, if you can open your book you can स्टेंजा वाइज देखेंगे। सबसे पहला स्टेंजा है, उसमें पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। पर्सोनिफिकेशन देखिए पूरी पोएम के अंदर ही है, हर स्टेंजा के अंदर ही पर्सोनिफिकेशन है। कम फ्रॉम हॉर्न्स ऑफ कूट एंड हर्न, आई मेक अ सडन सैली, तो ये पर्सोनिफिकेशन हो गया। एलिट्रेशन क्यों हो गया? कम फ्रॉम हॉर्न्स ऑफ कूट एंड हर्न, हेम, तो यहाँ पर भी सी और एच का रेपिटेशन आ रहा है, एलिट्रेशन है। सडन सैली में एलिट्रेशन है। ओनोमैटोपोइया में बिकर आ गया आपका, बिकर डाउन द वैली। सो पर्सोनिफिकेशन आ गई आपकी सेकंड स्टैंजा में भी, बाय 30 हिल्स आई हरी डाउन। अब एलिट्रेशन भी है 30 हिल्स आई हरी डाउन में। बाय 20 थॉप्स में भी आपका एलिट्रेशन आ गया। एंड हाफ 100 एच हाफ 100 ब्रिजेस में भी एलिट्रेशन आ गया। इन्वर्जन भी आया है, बाय 30 हिल्स आई हरी डाउन। थर्ड स्टैंजा देखिए, पर्सोनिफिकेशन अगेन इज देयर, टिल लास्ट बाय फिलिप्स फार्म आई फ्लो बट आई गो ऑन फॉर एवर। एलिट्रेशन आ गया, टिल लास्ट द फिलिप्स फार्म आई फ्लो, एफ एफ फार्म आई फ्लो। For men may come, men may come and men may go, तो एलिट्रेशन आ गया। इन्वर्शन आ गया, till last by Phillips farm I flow। फोर्थ पैराग्राफ देखिए, स्टेंजा देखिए, सॉरी, पर्सोनिफिकेशन है अगेन, आई चैटर ओवर स्टोनी वेज, आई बबल इनटू एडिंग बेज, आई बबल ऑन द पेबल्स। एलिट्रेशन है, आई बबल इनटू एडिंग बेज। अब ओनोमैटोपिया भी आ गया आपका, मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें चैटर है, ट्रेबल्स है, बैबल है, तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हो गए। फिफ्थ स्टैंजा में भी पर्सोनिफिकेशन है, विद मैनी अ कर्व माई बैंक्स आई फ्रेट। एलिट्रेशन आ गया, बाय मैनी अ फील्ड एंड फैलो एंड मैनी अ फेरी फोरलैंड सेट, विलो वीड विद विलो वीड आ गया, डब्ल्यू डब्ल्यू एलिट्रेशन। इन्वर्जन, विद मैनी अ कर्व माई बैंक्स आई फ्रेट। फिर सिक्स स्टैंजा, पर्सोनिफिकेशन, आई चैटर चैटर एज आई फ्लो बट आई गो ऑन फॉर एवर। अगेन द एलिट्रेशन इज देयर, फॉर मैन में कम एंड मैन में गो, मैन में रेपिटेशन आ गया, आई चैटर चैटर में रेपिटेशन हो गया, एज आई फ्लो। फॉर मैन में कम, मैन में गो में भी आपका रेपिटेशन है। देखिए चैटर चैटर रेपिटेशन, चैटर एक एनोमेटोपिया का भी है यहाँ पे एग्जाम्पल, और चैटर चैटर और मैन में एलिट्रेशन भी है। तो ये सारी चीजें हैं विच यू हैव टू सी केयरफुली। Seventh stanza, personification is against there, I went about in and out, repetition आ गया here and there का। Eighth stanza में भी personification है, upon me as I travel, alliteration आ गया, and here and there a foamy flake above the golden gravel। Ninth stanza में repetition है, for men may come and men may go, alliteration है, for men may come and men may go, personification है, but I go on forever। तो इस तरह से यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन भी है। 11th स्टैंजा में देखिए, यहाँ पे भी आपको पर्सोनिफिकेशन है, आई स्लाइड आई ग्लू माई ग्लांस अमंग माई स्किमिंग swallows, आई मेक द नेटेड sunbeam डांस अगेंस्ट माई सैंडी शैलोज। उसके बाद फिर से एलिट्रेशन आया, स्लिप स्लाइड में, ग्लूम ग्लैंस में, अमंग माई स्किमिंग swallows में। 12th स्टैंजा पर्सोनिफिकेशन है, मरमर है, मरमर में देखिए एनोमेटोपिया आ गया, आपको पहले ही देखते समझ आ गया होगा, आई मरमर अंडर मून एंड स्टार्स, आई लिंगर बाय माई शिंगली बार्स, आई लॉटर अराउंड माई क्रेसेस, पर्सोनिफिकेशन है। एलिट्रेशन में आई मरमर अंडर मून एंड स्टार। In the last stanza, personification again and out again, I curve and flow but I go on forever। अब इसमें एलिट्रेशन भी है, फॉर मैन में कम एंड मैन में गो में, रेपिटेशन भी है, मैन में कम एंड मैन में गो में, ऑक्सीमोरॉन भी है, फॉर मैन में कम एंड मैन में गो में। राइम स्कीम है यहाँ पे जो स्टेंजास की, वो ए बी है। रिफ्रेन भी है। रिफ्रेन क्या होता है? रिफ्रेन अ वर्ड, लाइन और अ फ्रेज दैट इज रिपीटेड
within the lines or stanza of the poem itself. तो ये कितनी बार रिपीट करी गई है? If you go through the poem, you can see ये बहुत बार रिपीट हुई है. For men may come and men may go, but I go on forever. तो ये रिफ्रेन भी है यहाँ पर. Inversion है. And out again I curve and flow. Inversion क्या होता है? Reversal of the normal order of the words and phrases in a sentence. So these are all the poetic devices which are there in the poem Brook. I hope this was helpful for you. If you like the video, kindly like, share and subscribe. Thank you so much.